Just I'll share the screen. So today topic, you all are aware that today topic is on chart patterns, right? So before starting the session, I would like to know how many of you are attending it for the first time and how many of you have already attended the session on chart patterns. Just can you apply on the chat? Okay, first time, second, third time, Shivaji. Okay, Puneet ji for the first time, Vikas ji first time, Devesh ji first time, already attended, Mangesh ji. Okay, Shakti Anand ji second time, Bhavik ji second time. Okay, already attended. Okay, attended. Okay, so I think many people have already attended first for second time or third time, and then repeat, and many are with you for the first time. Okay, so I'll start with some basics. Sound is not coming. For Ram Badalji, sound is not coming. Okay, I think for others it is clear. Yeah, for others it is clear, I think. So those who have not getting the clear sound, please check the system once. Okay. So now without wasting time, let's start the session. Okay. So the session is chart patterns. So what is chart patterns and how they influence your trading and how can you take the benefit of these chart pattern? Okay. So chart patterns, first you understand what is charts, and then from charts comes chart patterns. So chart is what? Chart is basically a visual representation or a graphical representation of prices. Whatever price movement has happened, okay, it is a visual representation or a graphical representation. So charts can be made of anything, okay. Anything chart can be made of anything. Like if you go for a ECG electrocardiogram, okay, you see there is a line charts, so which shows that peaks and troughs, okay. So human life also have charts, ups and downs are there in a, like in human life, in our lives. So there is a chart of ourselves also. There are times when we go up at the peaks, then there is a downfall, we come down, then again we recover. So same way, stocks have also have charts, okay. That is the how it has happened and what is happening, okay. And chart patterns come from charts, which helps you, okay, which helps you to predict in which direction the next move can be. तो कौन से डायरेक्शन में नेक्स्ट मूव हो सकता है, चार्ट पैटर्न्स हेल्प यू फॉर दैट, ओके. एंड अपार्ट फ्रॉम गिविंग यू द डायरेक्शन, इट ऑल्सो गिव्स यू द टारगेट. तो ये आपको साथ साथ टारगेट भी बताता है कि चार्ट पैटर्न के हिसाब से क्या टारगेट्स होते हैं, राइट. तो चार्ट पैटर्न्स पहले बात बनते क्यों है? चार्ट पैटर्न्स बनते हैं बिकॉज ऑफ द साइकोलॉजी ऑफ ऑल द पार्टिसिपेंट इन द मार्केट्स. जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं मार्केट में, व्हाट दे थिंक अबाउट द स्टॉक और मार्केट, ठीक है, it is being reflected in that price, and price is shown by charts. So ultimately chart pattern reflects the psychology of all the participants in the market, right. So depending on the depending on the situation or market trends, there are mainly two types of chart patterns which are formed, okay. First is a reversal patterns, and then there is a continuation pattern. Reversal patterns are the patterns which are formed at the end of the downtrend or at the bottom of the at the top of the uptrend, okay. There is a reversal, means अगर कोई स्टॉक ट्रेंडिंग डाउन कर रहा था, कोई स्टॉक नीचे जा रहा है, तो अगर वो नीचे से रिवर्स करके ऊपर जाता है, दैट इज अ अपट्रेंड रिवर्सल, ओके. या कोई स्टॉक ऊपर से नीचे की तरफ गिरने लगता है, दैट इज अ अपट्रेंड रिवर्सल, मींस दैट इज अ बियरिश पैटर्न, ओके. और वैसे ही देयर इज अ कंटिन्यूएशन पैटर्न. क्या होते हैं कंटिन्यूएशन पैटर्न्स? आर द पैटर्न्स व्हिच कंटिन्यू द प्रायर मूव. मींस अगर कोई स्टॉक ऊपर जा रहा है, then it takes some rest, it trades in a range, and then again start moving in the same direction, that is up. So that is uptrend continuation. वैसी कोई स्टॉक अगर डाउन ट्रेंड में है, it's gives some bounce back, then again it starts moving down. So that is a downtrend continuation pattern. So depending on the uptrend and downtrend and continuation and reversal pattern, different names have been given to different chart patterns, right? So to name some, like continuation patterns, क्या क्या patterns होते हैं? There is a bullish flag जो uptrend continuation में बनता है. Then there is a bearish flag जो downtrend continuation होता है, okay? फिर उसके बाद आपका रिवर्सल पैटर्न. रिवर्सल पैटर्न जैसे आपका हो गया हेड एंड शोल्डर.
inverted head and shoulder and head and shoulder. Inverted head and shoulder is a bullish pattern जो नीचे से ऊपर की तरफ जाता है. Okay, and head and shoulder is a bearish reversal patterns that up से down. Okay, then there is a bullish reversal pattern जैसे कि rounding bottom. Rounding bottom is a bullish reversal pattern and rounding top is a bearish reversal pattern. ठीक है. Then there is a wedge pattern, channel pattern, symmetrical triangle, okay, double top, double bottom. So different patterns, and today we will discuss some of the patterns. So the one pattern request has come, that is from Mr. Shakti ji about wedge pattern. So I'll start with wedge pattern also only. Okay. So there is no interlink between one pattern to another. So we can start from any pattern, okay, and can jump to any other pattern also. So no problem. So I'll first take with wedge pattern only. Okay, so wedge patterns. So wedge patterns are generally two types, right? One is rising wedge and one is falling wedge. Rising wedge and falling wedge. Rising wedge and falling wedge. So rising wedge is a bearish pattern. Rising wedge is a bearish pattern and it can be formed in uptrend as well as in downtrend. Okay. Please, I'll repeat. Rising wedge is a bearish pattern, okay, and it can act as a continuation pattern also, and it can act as a reversal pattern also. मैं फिर से एक बार हिंदी में भी रिपीट कर रहा हूँ. राइजिंग वेज जो है वो आपका एक बेयरिश पैटर्न है. ठीक है, ये आपका इसको अपने रिवर्सल पैटर्न भी बोल सकते हैं और कंटिन्यूएशन पैटर्न भी बोल सकते हैं. ठीक है, रिवर्सल पैटर्न कब बोलते हैं? अगर ये अप ट्रेंड में बनता है, अगर राइजिंग पैटर्न जो है अप ट्रेंड में बनता है, देन वो रिवर्सल पैटर्न है. क्योंकि ये बेयरिश पैटर्न है तो अप से डाउन जाएगा, तो इट्स अ रिवर्सल पैटर्न इन केस ऑफ अप ट्रेंड. अप ट्रेंड में अगर राइजिंग वेज बन रहा है देन इट इज अ रिवर्सल पैटर्न. बट अगर ये डाउन ट्रेंड में राइजिंग वेज बन रहा है देन इट इज अ कंटिन्यूएशन पैटर्न. मींस एक डाउन ट्रेंड चल रहा था, एक राइजिंग वेज बना एंड अगेन द स्टॉक विल कंटिन्यू इट्स डाउन मूव. तो इन दैट केस राइजिंग वेज इज अ कंटिन्यूएशन पैटर्न. तो अगर ऊपर के साइड में बने या नीचे के साइड में बने, अगर राइजिंग वेज बन रहा है तो ये बेयरिश पैटर्न होता है. क्लियर है? ओके, तो अभी इसको देख लेते हैं कैसे बनता है. ओके, सो राइजिंग वेज एज यू कैन सी हाउ इट इज फॉर्म. सो राइजिंग वेज इज फॉर्म बाय कनेक्टिंग higher lows. You can see this higher lows. There is one upward sloping line. Okay, एक अपवर्ड स्लोपिंग लाइन है जो हायर लोज को कनेक्ट करती है. ठीक है, एंड देयर इज वन हायर हाइज. ये देखिए हायर हाइज की तरह एक बन रहा है, हायर हाइज कनेक्ट हो रहे हैं, बट तो रेंज जो है द मोमेंटम इज लूजिंग एंड द रेंज इज स्क्यूजिंग. रेंज आपका एक नैरो होता जा रहा है. तो एक डाउन ट्रेंड है. ओके, डाउन ट्रेंड है, उसके बाद एक वेज फॉर्म बना. यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि रेंज जो है एक काफी नैरो हो गया. ओके, तो जैसे ही इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन देगा, इफ इट क्लोजेस बिलो दिस देन इट इज कॉल्ड कंटिन्यूएशन पैटर्न. राइजिंग वेज का ये हो जाएगा कंटिन्यूएशन पैटर्न. ये क्यों कंटिन्यूएशन पैटर्न होगा? बिकॉज द प्रायर ट्रेंड जो था, प्रायर ट्रेंड वाज डाउन. ओके, सो द प्रायर ट्रेंड वाज डाउन एंड इट हैज गिवन अ ब्रेकडाउन ऑफ अ राइजिंग वेज. सो दिस विल कॉल्ड एज अ continuation pattern of a rising wedge and this is a bearish pattern. Here the momentum is losing and the breakdown में general logic है, general फंडा है कि whenever there is a breakout and breakdown the volume should increase. ये कोई भी breakout और breakdown के लिए है, ये valid है. and during the formation of the pattern, जब pattern बनता है तो volumes क्या होता है? dry up हो जाता है. ठीक है, volumes dry up. जनरली आपका जब ये क्लाइमेक्स सेलिंग हो गया होगा, बहुत सी सेलिंग हो गई होगी, तो यहाँ पे एक बड़ा वॉल्यूम आया होगा. देन अगेन देयर इज अ ड्राइनेस इन दी वॉल्यूम. वॉल्यूम आपका कम हो जाता है एंड व्हेनेवर देयर इज अ ब्रेकडाउन अगेन द वॉल्यूम विल इंक्रीज. ओके, तो ये होता है आपका राइजिंग वेज. अब इसका टारगेट कैसे निकालेंगे राइजिंग वेज का हम लोग? राइजिंग वेज में अपना जो वाइडेस्ट डिस्टेंस होगा, ये जो वेज के अंदर में जो सबसे बड़ा डिस्टेंस होगा, इस केस में अपने ये देख रहे हैं, दिस इज द वाइडेस्ट डिस्टेंस, राइट? दिस इज द टॉप एंड दिस इज द बॉटम. तो ये वाइडेस्ट डिस्टेंस का हाई एंड लो लेंगे. ओके, सपोज द हाई इज 200 एंड लो इज 150. ओके, हाई इज 200 एंड लो इज 150. तो डिफरेंस इज हाउ मच? 50 रुपीज. तो 50 रुपीज का डिफरेंस है. तो अगर ब्रेकडाउन होता है, ओके, सपोज द ब्रेकडाउन इज हैपनिंग एट 180. ओके,
breakdown is happening at 180. So 180 minus 50, that is 130. So 130 will be the target for this stock. Okay, I'll take you for the live examples में भी मैं ले जाऊंगा, where we will discuss the target. Okay, अभी मैं आपको theoretical बता रहा हूँ, then we will do in practical also कि कैसे फाइंड करते हैं टारगेट. ओके, क्लियर है? सो टारगेट्स अंडरस्टूड. तो टारगेट्स विल टेक द हाईएस्ट वेज का जो वाइडेस्ट डिस्टेंस होगा उसका हाई और लो लेंगे और अपने यहाँ पे ब्रेकडाउन पॉइंट से सब्ट्रैक्ट कर देंगे टू गेट द टारगेट ऑफ द राइजिंग वेज. ओके, एंड नाउ व्हाट वुड बी द स्टॉप लॉस? जनरली पैटर्न्स डोंट गिव स्टॉप लॉस. पैटर्न्स अपने को स्टॉप लॉस देते नहीं है, बट फिर भी अपने को स्टॉप लॉस लगाना पड़ेगा, अपने को स्टॉप लॉस रखना पड़ेगा, बिकॉज देयर इज नो पैटर्न विच इज 100% श्योर कि अगर वो नीचे का ब्रेकडाउन दे दिया है तो वो ब्रेकडाउन ही होगा, नीचे जाएगा. देयर इज नेवर अ श्योरिटी इन द मार्केट, इट इज ऑलवेज अ प्रोबेबिलिटी गेम. 10 में अगर 7 बार राइट पढ़ेंगे तो 3 बार रॉन्ग भी पढ़ सकते हैं. तो इसीलिए अपने को ज्यादा लॉसेस नहीं हो उन 3 ट्रेड्स में, तो अपने को क्या करना होगा, उसमें के लिए स्टॉप लॉस लगा के रखना पड़ेगा. ठीक है, तो बिकॉज यू ऑलवेज हैव टू बी, यू कैनॉट avoid stop losses or you cannot avoid losses in the market. You can only minimize your losses. Losses are inevitable in markets, means losses honge markets mein, but how you are managing your losses, that is important, right? So for that we have to keep stop losses. So now what are the best ways of keeping stop losses? So generally stop loss depends on your risk capacity, how much risk you can take. So some people can take a risk of 5%, some people can take a risk of 10%, some can take a risk of 3%. So depending on your risk capacity, you can place your stop loss, or you can use a general formula, which is very good idea also. And I generally suggest to keep that. That is 1:2 ka risk reward ratio. 1:2 ka risk reward ratio. Suppose in this case, the target you are getting is 50 points from the breakdown point. You should not keep your stop loss more than 25 points. आपको पैटर्न टारगेट तो पता दे रहा है, उसी से आप स्टॉप लॉस निकाल लीजिए. उसका आधा, अगर 50 पॉइंट का टारगेट मिल रहा है तो 25 पॉइंट का यू कैन कीप अ स्टॉप लॉस. इफ यू आर गेटिंग अ टारगेट ऑफ 100 रुपीज, यू कैन कीप अ स्टॉप लॉस ऑफ 50 रुपीज. सो दिस इज वन ऑफ द वे यू कैन कीप अ टारगेट स्टॉप लॉस बाय मेजरिंग रिस्क एंड रिवॉर्ड. एंड सेकेंड वे क्या आपका, ब्रेकडाउन कैंडल या ब्रेकआउट कैंडल. अगर नीचे का सेल साइड खेल रहे हैं, अगर ब्रेकडाउन कैंडल जो होता है उसके हाई के ऊपर स्टॉप लॉस लगा सकते हैं. अगर कोई लॉन्ग बियरिश कैंडल के साथ, कोई बड़ी बियरिश कैंडल के साथ ब्रेकडाउन दिया है, ठीक है, और प्राइसेस नीचे है, तो आप उस ब्रेकडाउन कैंडल के हाई के ऊपर यू कैन पुट अ स्टॉप लॉस. दैट इज द सेकंड वे. एंड थर्ड वे, मैक्सिमम स्टॉप लॉस यू कैन कीप इज अबव दिस. अगर ब्रेकडाउन देने के बाद प्राइस इसके ऊपर क्लोज हो जाता है, देन यू शुड एग्जिट. मींस क्योंकि ट्रेंड चेंज हो गया, क्योंकि ब्रेकडाउन दिया, वापस इसके ऊपर अगर चला गया तो आपका क्या पैटर्न जो है वो निगेट हो गया, द पैटर्न इनवैलिड हो गया. सो यू विल एग्जिट द स्टॉक. ठीक है, or you can use, these are the ways which I am suggesting. You can use other methods also which suits your way of trading or risk profile. ठीक है, NPST showing falling wedge. We'll discuss the individual stocks later. First general idea कैसे अपना होता है, then we'll discuss the stock. ठीक है, so this is how you will calculate the target of rising wedge. Okay, now see, this is an example which I have taken from a stockage. This is an old example क्योंकि ये पहले का PPT बना हुआ है. तो ये एक राइजिंग वेज है जिसमें आप देखें लो, हायर लोज है. ठीक है, मींस हायर लोज मींस ये हाई जो है इस, ये जो लो है इस लो से हायर है, ये लो जो इस लो से हायर है. So there is one uptrending line and this is also one uptrending line, but the strength is decreasing, the momentum is decreasing. और यहाँ पे इसका ब्रेकडाउन होता है. वॉल्यूम ड्राई अप मैंने जो कहा था, जब पैटर्न बनता है, जो विदिन जब पैटर्न बनता है, सो देयर इज अ वॉल्यूम ड्राई अप. वहां पे वॉल्यूम ड्राई हो जाता है. व्हाई वॉल्यूम ड्राई हो जाता है? बिकॉज द स्टॉक इज ट्रेडिंग इन अ रेंज. whenever the stock is trading in a range, so there is not much interest. लोगों का इंटरेस्ट नहीं है इन दैट स्टॉक, सो वॉल्यूम ड्राई अप्स. बट व्हेनेवर द ब्रेकआउट हैपेंस, जब भी ब्रेकआउट होता है तो एवरीबडी गेट एक्साइटेड. वहां पे बहुत ज्यादा लोग एक्यूमुलेट करने लगते हैं ब्रेकआउट के टाइम में. तो वहां पे क्या होता है, वॉल्यूम बढ़ जाता है. जनरली कोई स्टॉक्स अगर बहुत दिन से ट्रेडिंग रेंज में चल रहा होगा, सो यू विल ऑल्सो अवॉइड दैट स्टॉक, आई विल ऑल्सो अवॉइड दैट स्टॉक. सो व्हेनेवर एक ट्रेडिंग रेंज में चला जाता है, पैटर्न फॉर्मेशन जो होता है, दैट इज अ ट्रेडिंग रेंज.
कंसोलिडेशन रेंज, तो वहां पे वॉल्यूम जो है वो कम हो जाते हैं, ड्राई हो जाते हैं, ठीक है। बट जब ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन होते हैं तो जनरली आपके वॉल्यूम्स बढ़ जाते हैं, ठीक है। आइदर वो ब्रेकआउट हो या ब्रेकडाउन हो, दोनों केसेस में वॉल्यूम्स बढ़ता है, ठीक है। नाउ फॉलिंग वेज, as I said, falling wedge is a bullish pattern. Falling wedge is a bullish pattern, right? And it can also be a continuation pattern or it can be a reversal pattern. तो continuation pattern कब होता है? अगर ये अप ट्रेंड में बना तो प्रायर ट्रेंड क्या था? अप ट्रेंड था, ठीक है। तो इसमें क्या एक डाउनवर्ड स्लोपिंग लाइन है एंड दिस इज ऑल्सो डाउनवर्ड स्लोपिंग लाइन, ठीक है। इसको अपने कनेक्ट करेंगे और तो अपने को एक वेज का फॉर्मेट मिलेगा, ठीक है। और इसका ब्रेकआउट होगा कब? जब ये डाउनवर्ड स्लोपिंग लाइन के ऊपर क्लोज कर देगा, तो वील गेट अ ब्रेकआउट ऑफ दिस वेज, ओके। सो ब्रेकआउट हो जाएगा वेज का, एंड हाउ यू विल कैलकुलेट द टारगेट? सेम वे, विल टेक द वाइडेस्ट डिस्टेंस ऑफ द वेज, जो सबसे बड़ा डिस्टेंस, ये भी एक डिस्टेंस है, ये भी एक डिस्टेंस है, बट सबसे वाइडेस्ट डिस्टेंस कौन सा है वेज का? ये वाला है। तो विल कंसिडर दिस पॉइंट, विल एड द डिफरेंस बिटवीन हाई ऑफ दिस एंड लो ऑफ दिस। सपोज इसका हाई है 250 एंड इसका लो है 150, सो डिफरेंस इज 50 रुपीज, ओके। डिफरेंस, एंड सपोज द ब्रेकआउट हुआ है इसका 180 के पास में, तो 180 प्लस 50 दैट इज 230 विल बी माय अपसाइड टारगेट, ओके। Stop loss same, if 50 rupees my target, 1:2 के reward ratio से my stop loss will be 25, or we can keep a stop loss below the breakout candle, or we can maximum we can keep a stop loss below this. अगर इसके नीचे बंद हो जाता तो definitely we'll have to exit, ठीक है। सो राइजिंग वेज अगर अप ट्रेंड में बनता है देन इट इज अ कंटिन्यूएशन पैटर्न, बट अगर डाउन ट्रेंड में अगर फॉलिंग वेज बना है, अगर डाउन ट्रेंड में फॉलिंग वेज बना है, देन इट इज अ रिवर्सल पैटर्न, बिकॉज इन बोथ द केसेस इट इज बुलिश। Falling wedge means bullish. Okay. Okay, Kashi ji, target. Okay, I'll explain it once again. So target, I'll calculate widest distance. ये जो wedge का सबसे widest means सबसे जो बड़ा distance होगा, वो अपने को ये वाला दिख रहा है। ये भी एक distance है, ये भी एक distance है, but सबसे widest, सबसे बड़ा distance ये वाला है। ये high और ये low, तो ये high और ये low का difference लेंगे। Suppose ये high है 200 और ये लो है 150, तो डिफरेंस कितना हुआ? 250 माइनस 150, दैट इज 50 रुपीज का डिफरेंस, ओके। तो 50 रुपीज को अपने, और सपोज ब्रेकआउट हुआ है 180 के पास में, तो 180 प्लस 50 230, तो 230 मेरा टारगेट होगा, ओके। काशी जी, ओके। भारती जी, वॉल्यूम, यू हैव अंडरस्टूड द वॉल्यूम अबाउट द वॉल्यूम ड्राइनेस, ओके, थैंक यू। Okay, so this you can see this is a falling wedge. Okay, this is a falling wedge और ये क्या है आपका रिवर्सल। यहाँ पे क्या होगा? फॉलिंग वेज का रिवर्सल पैटर्न होगा, बिकॉज एक डाउन ट्रेंड्स के बाद फॉलिंग वेज बन के ब्रेकआउट दिया एंड स्टॉक इज मूविंग अप। सो दिस इज एन एग्जांपल, परफेक्ट एग्जांपल ऑफ फॉलिंग वेज रिवर्सल, ओके, फॉलिंग वेज रिवर्सल। और ये अगर अप ट्रेंड में बनता तो दैट इज अ फॉलिंग वेज, जैसे इस केस में होता तो फॉलिंग वेज कंटिन्यूएशन पैटर्न, ओके। ओके, सो जब मैं जनरल है, पैटर्न फॉर्मेशन के टाइम में वॉल्यूम ड्राई अप हो जाएगा। ये जो वेज फॉर्मेशन हो रहा है यहाँ पे, इसका मीन हो रहा है कि मोमेंटम ड्राई हो रहा है, प्रॉफिट बुकिंग इज कमिंग अप, ओके, मोमेंटम इज ड्राइंग, बट एंड डिमांड एंड सप्लाई इज बैलेंस्ड इन दिस एरिया, एंड व्हेनेवर द ब्रेकआउट हैपेंस देयर इज अ इम्बैलेंस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। तो जनरल बात याद रखिएगा, जब भी मार्केट में ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन होता है तो डिमांड एंड सप्लाई का इम्बैलेंस होता है। बहुत लोगों का क्वेश्चन आता है, मैं आप लोग को भी डिस्कस कर ले रहा हूँ, सर अगर मैंने 5 स्टॉक बाय किया तो 5 स्टॉक किसी ने सेल किया, तभी तो मैंने बाय किया। सो देयर इज ऑलवेज अ मैच ऑफ बायर्स एंड सेलर्स। सो हाउ दिस डिमांड एंड सप्लाई कम्स? ये डिमांड और सप्लाई कब आता है? तो दिस डिमांड एंड सप्लाई इज द एग्रेशन। आप कितने एग्रेसिव हैं बाय करने के लिए एंड आप कितने एग्रेसिव है सेल करने के लिए, ठीक है। अगर आप एक रेंज बॉन्ड मार्केट में, आप एक लिमिट ऑर्डर है, आप एक लिमिट ऑर्डर में आप बाय करते हैं कि मुझे 100 रुपए पे ही लेना है, ठीक है, 100 रुपए पे ही लेना है, तो आप क्या है, मार्केट एक रेंज में आप 100 रुपए पे लेंगे। बट अगर कोई स्टॉक्स 100 से 110 हो गया, 115 हो गया, 120 हो गया, देन यू विल ट्राई टू बाय इवन एट अ हायर प्राइस। आप 121 पे भी बाय करने का, यू आर विलिंग टू गिव हायर प्राइसेस, सो एट यू आर स्टार्टेड बिडिंग एट हायर प्राइसेस, ठीक है। तो जिससे क्या होता है, एग्रेशन बढ़ जाता है एंड
डिमांड्स कम अप एंड बिकॉज ऑफ दैट डिमांड एंड सप्लाई बैलेंस वहां पे आ जाता है. ओके, डिमांड एंड सप्लाई इम्बैलेंस आ जाता है. ओके, एग्रेशन इज मोर इंपॉर्टेंट. How much time frame we should check for that? Time frame, the pattern can be formed in any time frame, but in stockage we have patterns in a daily time frame. Daily time frame में है, ठीक है. डेली टाइम फ्रेम में कोई भी पैटर्न को बनने के लिए एटलीस्ट 3 मंथ्स लग जाता है, ठीक है. 3 मंथ्स के अंदर वो पैटर्न बनता है. आप वीकली पैटर्न में भी बन सकता है, मंथली में भी पैटर्न बन सकता है. पैटर्न्स कैन बी फॉर्म्ड इन एनी टाइम फ्रेम. ओके, ओके. सो नाउ आई टेक यू टू द स्टॉकेज का ऐप, जहां पे अपने ने बिल्डअप किया है, जहां पे विद द क्लिक ऑफ द माउस आपको पता चल जाएगा कि कौन से स्टॉक ने आपका वेज पैटर्न बनाया है. दैट इज द बिगेस्ट थिंग, क्योंकि देयर आर सो मेनी स्टॉक्स, आप इंडिविजुअली जा जाके चेक करना इज इम्पॉसिबल. ओके, बट विद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड विद द बहुत जो बैकएंड में जो टीम ने काम किया है इन स्टॉकेज, दिमाग लगा के, इसको ह्यूमन इंटेलिजेंस लगा के, बिकॉज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक्चुअली वर्क्स बिकॉज ऑफ ह्यूमन इंटेलिजेंस. तो जितना भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ जाए, ह्यूमन इंटेलिजेंस ही आर्टिफिशियल को इंटेलिजेंस देता है. सो दिस जनरेशन इज अपना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से होता है, बट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को अपने ने, ह्यूमन ने ही किसी ने इंटेलिजेंस दिया है, जिससे ही इज एबल टू परफॉर्म द ड्यूटी. ओके, एंड गिविंग आर स्टॉक्स, स्कैनिंग स्टॉक्स फॉर अस एंड मेकिंग आवर लाइफ इजियर एंड सिंपलर. ओके, सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स मूव टू स्टॉकेज का चार्ट पैटर्न. मैं चाहता हूं I'm changing the screen. Okay, just 1 minute. Yeah, so I've changed the screen. Hope everybody सबके screen changed दिख रहे हैं और स्टॉकेज का ऐप दिख रहा है. Any confirmation? Please confirm me once. Okay, thank you गणेश जी, thank you हजारी जी. Okay, so यहाँ पे आप देख सकते हैं under Pro Analytics there is a chart pattern option. Okay, तो यहाँ पे अपने सीधा चले जाते हैं वेज पैटर्न्स में. ओके, तो वेज पैटर्न्स में यू कैन सी, अब यहाँ पे एक बेसिक चीज पहले मैं बता दूं आप लोग को. यहाँ एक रीसेंट टैब दिख रहा है, पास्ट. रीसेंट मींस जो अभी स्टॉक्स ओपन है, जो हाल फिलहाल अभी वेज पैटर्न्स के अंदर में आए हैं, ठीक है. तो दे आर 11 स्टॉक्स विच हैज कम अंडर वेज पैटर्न्स. एंड पास्ट का है, ये पास्ट का दिखाता है. पास्ट में अराउंड 205 स्टॉक्स जो है वेज पैटर्न में आ चुके हैं, जो अभी इसमें से निकल चुके हैं. रिसेंट दीज आर एक्टिव टू ट्रेड. ओके, और ये मेजर स्टॉक्स से लिया हुआ है. मेजर स्टॉक्स मींस जिनका जो मार्केट कैपिटलाइजेशन अच्छा मार्केट कैप है, वो लोग ही इसमें इंक्लूडेड है. ठीक है, आप यहाँ से फिल्टर से सेलेक्ट कर सकते हैं अदर्स भी. अगर आपको ऑल चाहिए, यू कैन सेलेक्ट ऑल स्टॉक्स, तो सारे स्टॉक्स के ऊपर आ जाएगा. बट इट इज रिकमेंडेड टू यूज मेजर स्टॉक्स ओनली, बिकॉज क्योंकि ऑल स्टॉक्स लेते तो बहुत से छोटे छोटे स्मॉल कैप कंपनीज, माइक्रोस्कोप स्मॉल कैप कंपनीज भी आ सकती हैं, जिसमें जो पैटर्न का उतना वैलिडिटी नहीं रहता है, क्योंकि उसका मार्केट कैप बहुत छोटा रहता है. ठीक है, तो बाय डिफॉल्ट इट इज मेजर स्टॉक्स. ओके, so let's open wedge pattern. So under wedge pattern you can see falling wedge, and you can see the falling wedge is marked in green. Marked in green means it is a bullish pattern, and rising wedge it is marked in red, it means it is a bearish pattern. तो अपने ने देखा था वेज में 11 पैटर्न थे, जिसमें से 5 जो हैं फॉलिंग वेज के हैं और 6 जो हैं राइजिंग वेज के हैं. मींस 5 बुलिश पैटर्न एंड 6 बेयरिश पैटर्न. ओके, नाउ आप इसको अगर यहाँ पे देखिए, छोटा सा एक डेफिनेशन दिया हुआ पैटर्न्स के ऊपर में. ठीक है, सो इंट्रोडक्शंस है यहाँ पे, यू कैन सी द इंट्रोडक्शंस. ठीक है, और अपने सीधा जाएंगे स्टॉक्स में. तो व्हाट आर द स्टॉक्स व्हिच हैज कम. सो यू कैन सी देयर इज टिमकिन. टिमकिन आया है, कब आया है? 12 सितंबर को आया है. एंड एट व्हाट प्राइस? 3798 पे ब्रेकआउट हुआ है इसका, एंड अभी प्राइस चल रहा है 3760. ठीक है, देन यू कैन सी थर्मैक्स, जो आपका 9 सितंबर को आया 4308 पे, और अभी 4730 चल रहा है. ठीक है, तो लेट्स स्टडी द चार्ट. ओके, सो
ये पैटर्न आपका बना, ठीक है। यू कैन सी दिस इज अ फॉलिंग वेज, राइट। ये फॉलिंग वेज है। प्रायर ट्रेंड क्या था? अप ट्रेंड था। तो अगर प्राइस यहां पे देखिए, फर्स्ट टाइम प्राइस ने यहाँ पे ब्रेकआउट दिया था, तो जब भी प्राइस इसके ऊपर ब्रेकआउट दे देगा तो मीन्स ये आपका एक्टिव हो जाएगा, ठीक है। अभी मैं दूसरी चीज भी आपको बताऊंगा कि कब आपको ब्रेकआउट्स लेना है और कब आपको ब्रेकआउट छोड़ना है, बिकॉज स्टॉक्स तो आपके हो सकता है 50 आ जाए, 20 आ जाए, बट आपने को तो 2-3 स्टॉक्स लेना है। बट उसमें 2-3 स्टॉक्स को फर्दर कैसे फिल्टर करें, ये स्टॉकेज ऐप में आने के बाद भी अपना इंटेलिजेंस लगा के, अपना रिसर्च कर, सॉरी, अपना रिसर्च लगा के और फर्दर फिल्ट्रेशन करके मैं कैसे स्टॉक्स लूं, ठीक है। तो वो मैं दिखाऊंगा आपको। तो यहाँ पे इसका ब्रेकआउट हुआ है, ठीक है। तो मैंने जो आपको कहा था कि इसका टारगेट्स कैसे निकलेगा एंड स्टॉप लॉस, आप मैक्सिमम स्टॉप लॉस इसके नीचे लगा सकते हैं, ठीक है। और मैंने एक और बात कही थी, ब्रेकआउट कैंडल के लो के नीचे, बट वो ब्रेकआउट कैंडल आपकी बिग होनी चाहिए, बड़ी लंबी होनी चाहिए। बट दिस इज अ वेरी स्मॉल ब्रेकआउट कैंडल, सो विल नॉट कीप अ स्टॉप लॉस बिलो दिस। तो भी बहुत हाई चांस है कि इसमें स्टॉप लॉस ट्रिगर हो जाएगा, राइट। So we'll not keep a stop loss below this because the breakout candle is very small. We can keep a stop loss below this, or we can keep a stop loss with 1:2 का risk reward ratio. Okay. Let's see Thermax. तो यहाँ पे देखिए थर्मैक्स ने ब्रेकआउट दिया है, ओके। तो आफ्टर गिविंग ब्रेकआउट इट इज मूविंग अप, ओके। तो आप देख रहे होंगे वॉल्यूम बहुत ड्राई हो गया था फॉर्मेशन के टाइम में, जो मैंने कहा था पैटर्न फॉर्मेशन के टाइम में वॉल्यूम बहुत ड्राई अप हो गया था, ठीक है। बट अभी भी ब्रेकआउट के टाइम में भी उतना वॉल्यूम नहीं है जितना होना चाहिए, बट थोड़ा बहुत बढ़ा है, तो उतना वॉल्यूम नहीं है। और ब्रेकआउट कैंडल भी उतनी ज्यादा लेंथफुल नहीं है, बड़ी कैंडल नहीं है, ठीक है। तो ऑल्दो इट हैज गोइंग अप, नो प्रॉब्लम, बट अपने एनालिसिस के लिए मैं आपको 2-3 चीज बता रहा हूँ। ब्रेकआउट कैंडल जब भी ब्रेकआउट हो तो 2-3 चीज जो है मैं बता रहा हूँ, कीप दिस इन माइंड, ओके। फर्स्ट इज द स्ट्रेंथ ऑफ द कैंडल। कैंडल एक छोटी बुलिश कैंडल के साथ ब्रेकआउट दिया है या लॉन्ग बुलिश कैंडल के साथ ने दिया है। तो जो लॉन्ग बुलिश कैंडल होगी, आई प्रिफर दैट कंपेयर टू अ स्मॉल बुलिश कैंडल, ओके। दैट इज द फर्स्ट क्राइटेरिया। सेकेंड इज the breakout is with good volume, और breakout with is the average volume और below average volume। अगर अच्छे वॉल्यूम के साथ हुआ है तो I'll give one more point to that stock। तो big bullish candle, good volume, okay, compared to small candle and a less volume, so I'll give more point to that, okay। second, third is candle का closing। ब्रेकआउट कैंडल का क्लोजिंग उसके हाई के पास हो रहा है या नीचे हो रहा है। अगर नीचे हो रहा है तो चांसेस है कि ब्रेकआउट आपका फॉल्स हो सकता है, बिकॉज there is a profit booking at the higher levels which has pushed the stock down, ठीक है। तो स्टॉक नीचे आ गया है और there is a profit booking at higher levels। तो first is the length of the candle should be big, okay, the volume should be strong while giving the breakout, and third, the close should be at the highs of the candle के high में, ठीक है। तो दिस हम पास्ट में देख सकते हैं अपने, जैसे जय बालाजी आया था, so this is the breakout candle, okay। यहाँ पे breakout दिया, it's a falling wedge, it's a bullish pattern and it has gone up। अच्छा, I got a perfect example। can anybody calculate the target of this stock? कोई टारगेट बता पाएगा क्या? प्लीज कैलकुलेट, आई एम ऑल्सो कैलकुलेटिंग द टारगेट ऑफ दिस। what could be the target as per this chart pattern of a जय बालाजी का? आई एम ऑल्सो कैलकुलेटिंग। एनी आंसर्स? मैंने कैलकुलेट कर लिया है, आप लोग ने भी प्लीज गिव योर आंसर्स। आई वांट एवरीबडी टू पार्टिसिपेट इन दिस। जय बालाजी का टारगेट
दिस एक्सरसाइज इज इंपॉर्टेंट। ओके, मनोज जैन जी 1160, जतिन जी 1050, अक्षय जी 1143, मनोज जी 1160, शक्ति आनंद जी 300, आई थिंक 300 पॉइंट्स। ओके, पंकज जी 1480। एनी मोर आंसर्स? ओके, so these are the answers which I got. Let me share 300 and plus Priyanka ji 304 point, 304 point, Sudhir ji ब्रेकआउट पॉइंट से प्लस 150। ओके, विकास कुमार जी 1200। ओके, ठीक है, आई एम ऑल्सो शेयरिंग माई टारगेट। माई टारगेट इज कमिंग 1202, वेरी क्लोज टू विकास जी। ओके, एंड इन पॉइंट टर्म्स, पॉइंट के टर्म्स में अपने लेंगे तो अराउंड 301 पॉइंट का टारगेट, अराउंड 301। ठीक है, 300 पॉइंट। कैसे कैलकुलेट किया मैंने टारगेट? इसका हाई लिया, द हाई ऑफ दिस स्टॉक इज 1144। ठीक है, एंड लो इज 843। ठीक है, तो डिफरेंस निकाला तो अराउंड 301 पॉइंट्स का डिफरेंस आ रहा है। ओके, सो 301 पॉइंट्स प्लस इसका ब्रेकआउट पॉइंट क्या था? 901 entry point. Price increase 901. So 901 plus 301, that is 1202. तो ये 1202 हो गया मेरा टारगेट। ठीक है, तो जिन्होंने भी 1202 के आसपास, 1200 या 1180 या 1220 आसपास है, तो वेरी क्लोज। ओके, तो 10-20 पॉइंट आगे पीछे कैन बी कंसिडर्ड एज अ गुड पॉइंट ऑफ टारगेट। ओके, नाउ एनीबडी कैन टेल मी व्हाट विल बी द स्टॉप लॉस with 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो से? व्हाट कैन बी द स्टॉप लॉस? 800, 150 पॉइंट, मिथुन जी 140 पॉइंट, स्विंग लो स्टॉप लॉस 150 पॉइंट्स, 150 पॉइंट्स। ओके, सो या यू कैन कीप अ स्टॉप लॉस 150 पॉइंट्स। सो 150 पॉइंट्स क्या होगा, अपने आप माइनस करेंगे तो अराउंड 750, राइट? तो 750 कुड बी माई स्टॉप लॉस। ठीक है, और मैंने एक और बात कहा था, ब्रेकआउट कैंडल के नीचे भी स्टॉप लॉस रख सकते हैं। तो ये कैंडल जो है, यू कैन प्लेस अ स्टॉप लॉस बिलो दिस ऑल्सो। इसका लो है 845, तो जो कम रिस्क लेना चाहते हैं वो इसके नीचे स्टॉप लॉस रख सकते हैं। ठीक है, और मैंने एक वे कहा था कि आप इसके नीचे अगर बंद हो जाता है तो आप इसके नीचे भी स्टॉप लॉस रख सकते हैं। ये स्टॉप लॉस क्या है, इसका लो क्या है? इसका लो, इफ यू चेक, द लो इज 783, which is very close to 750. So you can keep a stop loss 750 का स्टॉप लॉस रखते हैं, तो आपका 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो भी पुल अप होता है। ठीक है, और आपका प्रॉपर स्टॉप लॉस सेट हो जाता है यहाँ पे। ठीक है, टारगेट अपना ये देखें, हाई कहां तक गया था? हाई गया था ये अपना अराउंड 1150 के आसपास में हाई गया था। ठीक है, तो टारगेट से 50 रुपए नीचे, एंड देन देयर इज अ प्रॉफिट बुकिंग। ओके, सो देयर इज अ टारगेट, क्या बोल रहा मैं, हाँ, तो 50 रुपए नीचे से वापस फॉलिंग आने लगी। अच्छा, इज इट नेसेसरी कि टारगेट अचीव करेगा ही करेगा? इज इट अ श्योरिटी कि वो टारगेट अचीव करके ही गिरेगा, या पहले भी गिर सकता है? तो इट कैन क्लोज, मतलब पहले भी ये गिर सकता है, ऐसा कुछ नहीं है, टारगेट है। ठीक है, देयर इज नो श्योरिटी, तो आपको मूवमेंट देखना पड़ेगा। ठीक है, इफ इट इज टेकिंग रेजिस्टेंस, तो जैसे आपने यहाँ पे देखा एक रेजिस्टेंस लेवल था। ठीक है, फिर उसके बाद प्राइस ने यहाँ पे एक बेयरिशनेस बनाई थी, फिर देन यू कैन सी देयर इज अ डोजी कैंडल फॉर्मेशन। तो यहाँ पे आपको क्या होगा, अलर्ट हो जाना होगा कि भैया मैं प्रॉफिट बुक करूं कि नहीं, क्योंकि डोजी कैंडल, ऑल्दो इट इज नॉट अ रिवर्सल कैंडल, इट इज अ इनडिसीजन कैंडल, बट हाई पे फॉर्म हुआ है, तो थोड़ा एक तो प्राइस को एक रेजिस्टेंस मिल रहा है, तो इट्स बेटर टू एग्जिट। तो मैं प्रॉफिट से, टारगेट से पहले निकल जाऊंगा। ठीक है, अगर नहीं निकलना है आप होल्ड कर सकते हैं। ओके, होल्ड करने, हो सकता है यहाँ से वापस बाउंस बैक करके टारगेट अचीव करके उसके ऊपर भी चला जाए। ओके, नाउ सेकंड क्वेश्चन आता है कि अगर मैं ब्रेकआउट यहाँ मिस कर गया, तो मैं रीटेस्ट में बाय कर सकता हूं कि नहीं? तो यू कैन ऑब्वियसली बाय, अगर स्टॉक, कोई भी स्टॉक ब्रेकआउट होके अपने ब्रेकआउट लेवल को रीटेस्ट करता है। ओके, रीटेस्ट करके वहां से बाउंस बैक लेता है,
तो जैसे एक छोटा सा ये एग्जांपल, मैं यहाँ पे एक रीटेस्ट हुआ, यहाँ पे एक ब्रेकआउट हुआ, फिर उसके बाद देखिए कि यहाँ पे रीटेस्ट के हिसाब से करेक्शन आया, एंड देन वहां से एक बाउंस बैक चालू हो गया। तो यहाँ पे भी जब बाउंस बैक मूवमेंट चालू हो तो वहां पे आप इंटर कर सकते हैं। तो सिमिलरली अगर यहाँ से यहाँ तक आया और बाउंस बैक करना चालू किया, देन अगेन यू कैन री इंटर इनटू द ट्रेड। ओके, so this was the example of falling wedge. Now rising wedge, which is the bearish pattern. अच्छा, और एक चीज बताना चाहूंगा, डोंट प्ले bullish pattern in a bearish market and don't go for bearish pattern in a bullish market. अगर मार्केट आपका बुलिश है, सेक्टर बुलिश है और कोई स्टॉक ने बेयरिश ब्रेकडाउन दिया है, सो अवॉइड इट। ओके, अवॉइड इट, क्योंकि बहुत सच लोगों में होता है कि सर मैंने तो ब्रेकडाउन खेला, मार्केट ने ब्रेकडाउन दिया, सेल किया मैंने, ठीक है, बट स्टॉप लॉस ट्रिगर हो गया मेरा। ऐसा चांसेस कब होगा ज्यादा? जब मार्केट का ट्रेंड अप है, सेक्टर का ट्रेंड अप है, और स्टॉक ने कोई वजह से, कोई न्यूज से या कोई भी एक ब्रेकडाउन दिया है और आपने उस ब्रेकडाउन में सेल किया, तो क्या होगा, वो स्टॉक नीचे सपोर्ट ले लेगा और वापस बाउंस बैक दे देगा, तो चांसेस आर हायर दैट stop loss will get triggered. So in a bullish market, go for a bullish breakout. In bearish market, go for bearish pattern. Simple strategy. अभी का मार्केट क्या है? जैसा कि मार्केट क्या है, बुलिश है, तो अगर आपको एक राइजिंग वेज मिल रहा है और एक फॉलिंग वेज मिल रहा है, so which pattern you will go for? You will go for rising wedge or falling wedge in current market scenario? Any answers to this? Rising wedge, Jatin ji. Anamika ji falling, falling. Jatin ji falling, Shashi ji falling. Okay. Any more answers? Pragya ji falling. Okay. Dr. Vinita ji falling. Dilip Agarwal ji falling. Okay. So very good. So most of the people, most of the participants are saying falling. Okay. I will also go for falling. Why? Because falling is a bullish pattern. Falling wedge is a bullish pattern. Okay. And market is also trending up. It's trading near its all-time high के आसपास में. ठीक है. तो market is also bullish. Stock has also given me a bullish. So I will not go for bearish pattern. I'll go for a falling wedge, which is a bullish pattern. ना फॉलिंग वेज आपका रिवर्सल में भी हो सकता है, वो नीचे से बढ़ रहा हो, या वो अप ट्रेंड का कंटिन्यूएशन भी हो सकता है, तो आई विल गो फॉर फॉलिंग वेज। ठीक है, अभी जैसा मैं एग्जांपल यहाँ पे पिरामल एंटरप्राइज, तो अभी देखिए 11,050 पे ब्रेकआउट दिया, अभी 1120 चल रहा है, राइट, 19 चल रहा है। सो इसको खोलते हैं। अच्छा, रमेश जी का क्वेश्चन है, हाउ टू प्रिडिक्ट मार्केट इज राइजिंग। रमेश जी, वी कैनॉट प्रिडिक्ट, वी कैन सी दैट मार्केट इज राइजिंग। अभी तो हम लोग को दिख ही रहा है कि मार्केट ऑल टाइम हाई पे है, इसमें प्रिडिक्शन करने की कोई बात नहीं है। वी कैन इजिली से, अभी मैं ये चार्ट को देख के इजिली बता सकता हूँ कि मार्केट बढ़ रहा है। एनीबडी कैन से दैट मार्केट इज राइजिंग, तो इट इज एन अप ट्रेंड। अब वहां से रिवर्सल होगा कि नहीं, दैट इज अ डिफरेंट टॉपिक। ओके, बट नाउ क्लियरली बाय सीइंग दिस चार्ट आई कैन से दैट इट इज राइजिंग। सिमिलरली सीइंग द चार्ट ऑफ मार्केट मींस, मार्केट में बेंचमार्क इंडेक्स अपना क्या होता है, निफ्टी है बेंचमार्क इंडेक्स, ठीक है, निफ्टी, सेंसेक्स, ठीक है, या ब्रॉडर मार्केट में आप लेंगे तो स्मॉल कैप, मिड कैप, ठीक है। तो जनरल ट्रेंड अपने को देख के समझ में आ जा रहा है कि व्हाट इज, और अलग अलग वेज भी है, तो जिससे आप बोल सकते हैं मार्केट का ट्रेंड क्या है। अगर मार्केट अपने जनरली मार्केट अपने 200 डे एवरेज के ऊपर चलता है तो दैट इज एन अप ट्रेंड कंसिडर किया जाता है। स्मॉलर ट्रेंड होता है 20, मीडियम ट्रेंड 50 to 100, मीडियम सिंपल मूविंग एवरेज है, ठीक है। तो मीडियम ट्रेंड के लिए मार्केट डाउन है, अगर आपका 50 डे के नीचे चल रहा है तो ट्रेंड इज डाउन, ठीक है। मीडियम टर्म ट्रेंड इज अप इफ इट इज ट्रेडिंग अबव इट्स 50 डे मूविंग एवरेज, इफ इट इज ट्रेडिंग अबव इट्स 20 डे मूविंग एवरेज, देन शॉर्ट टर्म ट्रेंड इज अप। तो ट्रेंड भी आपका शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म, तीन में डिवाइड किया है। 20 डे मूविंग एवरेज के ऊपर चल रहा है तो आपका शॉर्ट टर्म ट्रेंड अप है। 50 to 100 डे मूविंग एवरेज के ऊपर चल रहा है, देन द मीडियम टर्म ट्रेंड इज अप। 200 डे मूविंग एवरेज के ऊपर चल रहा है, अप, लॉन्ग टर्म ट्रेंड इज अप। ओके, तो ये अलग अलग वेज है डिफरेंट ऑफ सीइंग द ट्रेंड। ओके, तो जनरल आप चार्ट से देख के बता सकते हैं कि मार्केट का ट्रेंड अभी क्या है, तो एनीबडी कैन से दैट अप ट्रेंड इज अप। सो इन दिस केस हियर, यहाँ पे देखिए राइजिंग वेज का पैटर्न का ब्रेकडाउन दिया था, तो जो मैं अभी आपको बात बोल रहा था, तो राइजिंग वेज इज अ बेयरिश पैटर्न बट मार्केट इज बुलिश।
and pharma sector is also bullish. Okay, and this has given a breakdown of a rising wedge, which is a bearish pattern. So I will not go for buy, not go for sell for this stock. ठीक है, तो मैं इसमें सेल नहीं करूंगा. ठीक है, क्या मैं बाय करूंगा? मैं बाय भी नहीं करूंगा. क्यों नहीं करूंगा? बिकॉज राइजिंग वेज इज अ बुलिश पैटर्न. यहाँ पे जो मुझे सेल करना चाहिए था वो मैं अवॉइड करूंगा, बिकॉज मार्केट इज ट्रेंडिंग अप, सेक्टर इज ऑल्सो मूविंग अप, सो आई विल अवॉइड सेलिंग. तो इससे क्या होगा? मैं अपने लॉसेस से बचूंगा. आई विल अवॉइड लॉस. मैं इसमें ट्रैप होने से बच सकता हूँ इफ यू फॉलो बाय दिस. अगर जस्ट मैं ब्लैंकली ब्रेकडाउन पे खेलूंगा, ठीक है, कि जस्ट प्रियामल ने अपना राइजिंग वेज का ब्रेकडाउन दे दिया तो मैं सेल कर दूं, तो मैं फंस सकता हूँ. ओके, क्लियर हो गया. सेकेंडली हम देखेंगे यहाँ पे द ब्रेकडाउन का जो स्ट्रेंथ है वो भी बहुत ज्यादा नहीं. कैंडल एक बहुत बड़ी कोई कैंडल नहीं बनी है. ठीक है, सो आई विल अवॉइड दिस ब्रेकडाउन. तो दिस इज हाउ आई कैन सेव माई सेल्फ बीइंग ट्रैप्ड. तो अपोज कौन सी, आप अगर क्रिकेट खेलते हैं तो कौन सी बॉल में आपको छक्का मारना है और कौन सी बॉल छोड़ना है, वो आपको हर बॉल में 6 नहीं मारना है. कोई कोई बॉल छोड़नी पड़ती है, राइट, ताकि अपने आउट नहीं हो जाए. तो ये वैसी बॉल है प्रियामल जो आपको अभी छोड़ना पड़ेगा ताकि अपने स्टॉप लॉस में फंस नहीं जाए. ओके, सो हाउ टू डिसाइड इंटर और नॉट. सो अगर मैं ये ट्रेंड नहीं देखूंगा, अगर मैं सिर्फ इसको देखता हूं, सिर्फ आज मैं, अगर मेरे पास आज स्टॉकेज में अलर्ट आया कि इसने पिरामिल का ब्रेकडाउन दिया है, तो मैं क्या देखूंगा? पहले मैं देखूंगा भाई मार्केट तो अप में, ये स्टॉक डाउन का ब्रेकडाउन दे रहा है, मेरा पहला क्वेश्चन. दूसरा देखूंगा कि मैं स्ट्रेंथ, कैंडल की जो स्ट्रेंथ है ब्रेकडाउन कितनी है. क्या कोई बहुत बड़ी कैंडल से आया है? तो मैं देखा नहीं, बहुत बड़ी कैंडल्स भी नहीं आई है, एक स्पिनिंग टॉप टाइप कैंडल बनी है. फिर मैं थर्ड क्वेश्चन आएगा, क्या मेरा वॉल्यूम क्या बढ़ा है ब्रेकडाउन के साथ? मैं देखा नहीं, वॉल्यूम भी ब्रेकडाउन के साथ में नहीं बढ़ा है. तो भैया मैं डिसीजन लूंगा कि आई विल नॉट इंटर. ठीक है, शुड वी वेट फॉर अनदर कैंडल आफ्टर ब्रेकडाउन? यस डेफिनेटली संतोष जी, आपको वेट करना चाहिए. ब्रेकडाउन कैंडल के बाद कंफर्मेशन इससे मिल सकता है और काफी फॉल्स ब्रेकडाउन अवॉइड किए जा सकते हैं. अगर ब्रेकडाउन या ब्रेकआउट के बाद सेकेंड डे उसके हाई के ऊपर चल रहा है या लो के नीचे चल रहा है, तो इट्स बेटर टू एंटर देयर. ओके, is there any reason for pharma sector is an uptrend? तो reason is a fundamental part, ठीक है, not a technical part. Reasons कोई भी न्यूज हो सकता है. I am also not aware. I can only speak on technical basis. ठीक है, तो मे भी कोई फंडामेंटल रीजंस हो, दैट इज अ फंडामेंटल पार्ट, न्यूज से रिलेटेड है. ठीक है, सेक्टर से रिलेटेड है, वो एक अलग है. अपने सिर्फ चार्ट पे डिस्कस करेंगे. ओके, कैन यू एनालाइज चार्ट फॉर पटेल इंजीनियर? ओके, वेल डू इट लेटर. ओके, राउंड बॉटम मल्टी या ब्रेकआउट स्टॉक्स वेयर टू इंटर आफ्टर रीटेस्ट. ठीक है, राउंडिंग बॉटम में मैं आऊंगा तो आई डिस्कस दैट. तो क्लियर हो गया ये वाला पार्ट. तो आप देखेंगे जितने भी ज्यादातर ब्रेकआउट मतलब बियरिश पैटर्न होंगे ना बुलिश मार्केट में, उनका आपको रिटर्न जो है वो नेगेटिव होगा. जितने भी बियरिश पैटर्न आएंगे, जैसे महिंद्रा महिंद्रा भी देखिए आप यहाँ पे 291 पे एंट्री पॉइंट था सेल का, बट 332 चल रहा है. तो जितने भी बियरिश पैटर्न आपको अप ट्रेंड मार्केट में मिलेंगे, उनमें आपको नेगेटिव रिटर्न आएगा. ठीक है, तो सेम चीज मैंने जो आपको कहा था, देखिए यहाँ पे ब्रेकडाउन दिया. ठीक है, उसके बाद द प्राइस इज रिवर्स्ड, volume has not increased, the strength of candle is not that strong, okay, and price has reversed, volume नहीं बढ़ा, तो I will avoid. So बहुत सी बॉल्स को छोड़ना पड़ेगा आपको अपने को लॉस को मिनिमाइज करने के लिए, ट्रैप नहीं होने के लिए. तो बहुत सी चीजों को आपको पहले क्या होता है हटाना, किसको किसको मुझे हटाना है कि मुझे ये नहीं लेना है, मुझे ये नहीं लेना है. आप 50 स्टॉक्स आएंगे तो 30 स्टॉक्स तो आपके ऐसे ही आउट हो जाएंगे, या 40 स्टॉक्स ऐसे ही स्टॉक्स आउट हो जाएंगे जो मुझे नहीं लेना है. अब वो 10 क्वालिटी स्टॉक्स बचेंगे जिसमें आपको और जजमेंट करना होगा, डिसीजन लेना होगा, ये 10 में से मैं 3 स्टॉक्स कैसे लूं. दिस इज हाउ यू हैव टू ट्रेड. आउट ऑफ सपोज 30-40 स्टॉक, जितने भी नंबर ऑफ स्टॉक, फर्स्ट ट्राई टू एक्सक्लूड कि मुझे कौन कौन सा नहीं लेना है. पहले ये मत सोचिए मुझे कौन सा लेना है, पहले मुझे कौन कौन सा नहीं लेना है. फिर वो आपका जो यूनिवर्स है, पहले 50 स्टॉक्स था, 50 से अब आपका 20 स्टॉक्स हो गया. अब 20 से आप और फिल्टर करेंगे, आपका 10 स्टॉक्स हो गया, 10 से और फर्दर फिल्टर करेगा, 5 स्टॉक्स तक आएंगे. वो सब में आप ट्राई कीजिए. Which is better to trade as per technical analysis signal which is not in your watch list stocks, or trade in stock which is watch daily? Market is falling till Thursday. Market is falling till Thursday, or so rising where should we have worked?
सी मैं ये बात अब बताना चाहता हूँ, मार्केट का ट्रेंड एंड करेक्शन इज अ वेरी डिफरेंट थिंग। ओके, मैं हर वेबिनार में बोलता हूँ, अच्छा है बहुत से मैं जो पहले अटेंड किए होंगे वेबिनार, दे मस्ट बी अवेयर कि मैं क्या बोलने वाला हूँ। जो लोग फर्स्ट टाइम अटेंड कर रहे हैं उनके लिए ये चीज है कि मार्केट में ट्रेंड रिवर्सल एंड करेक्शन, दे आर टू डिफरेंट थिंग्स एंड देयर इज अ वास्ट डिफरेंस बिटवीन दीज टू थिंग्स। ओके, जस्ट फॉर द एग्जाम्पल, एक बेसिक एग्जाम्पल मैं लेता हूँ। करेक्शन इज अ चेंज ऑफ वेदर एंड करेक्शन इज अ चेंज ऑफ वेदर एंड ट्रेंड इज अ चेंज ऑफ सीजन। होप आप लोग को कुछ बात समझ में थोड़ी सी आई मैंने जो इशारा दिया। करेक्शन इज अ ट्रेंड ऑफ चेंज ऑफ वेदर एंड रिवर्सल इज अ चेंज ऑफ सीजन। Anybody have understood what I'm trying to say? I'll explain मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, but I want to see how many have got my point. शशि जी ओके को समझ में आ गया, जतिन जी को समझ में नहीं आया, संतोष जी को समझ में आ गया, ओके प्रियंका जी को भी समझ में आ गया, ओके जितेंद्र जी को भी समझ में आ गया, सुधीर जी को भी समझ में आ गया, रुद्रपाल जी को भी समझ में आ गया, थैंक यू। रुद्रपाल जी तो मैं देखता हूँ बहुत बार रहते हैं सेशन में, ठीक है। तो ठीक है, मोस्ट ऑफ द पार्टिसिपेंट हैव अंडरस्टूड। ओके, तो जो नहीं समझे हैं फर्स्ट टाइम है या जो नहीं समझे मैं उनको एक्सप्लेन कर देता हूँ। जैसे कि बहुत गर्मी पड़ती है, जब बहुत गर्मी पड़ती है तो क्या होता है, एक बार बारिश आ जाती है, राइट? बारिश आती है ना, तो ये मार्केट से हट के एग्जांपल दे रहा हूँ ताकि आपको क्लैरिटी हो जाए। ओके, तो बारिश आ जाती है, तो बारिश आने से क्या गर्मी का सीजन खत्म हो जाता है? नहीं, वो क्या हुआ, चेंज ऑफ वेदर। तो गर्मी इतनी पड़ रही थी, बारिश हो गई, अपने को थोड़ा राहत मिल गई, थोड़ा ठंडा हो गया मौसम, अच्छा लगने लगा। बट 2-3 दिन बाद वापस से क्या होता है, गर्मी चालू, राइट? बट ये हो गया चेंज ऑफ वेदर। तो वे चेंज ऑफ वेदर मतलब जैसे कि करेक्शन, अगर मार्केट अप ट्रेंड में है, ठीक है, अप ट्रेंड अप ट्रेंड अप ट्रेंड चल रहा है, थोड़ा सा फॉल आ गया, दैट इज द चेंज ऑफ वेदर। ओके, नाउ चेंज ऑफ सीजन, अगर आप समर से अब विंटर में आ गए, अब आप समर से विंटर में आ गए, तो आपके वो गर्मी जो है खत्म हो गई, अब न्यू सीजन में आ गए, विंटर में आ गए। वैसे ही अगर ट्रेंड अप से डाउन चेंज हो जाएगा तो मींस अप ट्रेंड खत्म हो गया और डाउन ट्रेंड अब स्टार्टेड। अब वो डाउन ट्रेंड जो है आपका चलेगा 3 महीना, 6 महीना, साल भर, जो भी है वो चलेगा। जैसे अप ट्रेंड चला था वैसे ही अब डाउन ट्रेंड चलेगा। अब डाउन ट्रेंड में भी कुछ चेंज ऑफ वेदर्स आएंगे, थोड़े बाउंस बैक्स आएंगे, ऊपर आएंगे, फिर वापस से डाउन ट्रेंड कंटिन्यूएशन होगा। ओके, सो दिस इज हाउ आई एम ट्राइंग टू कोरिलेट। तो क्या होता है, मार्केट में थोड़ी सी सेलिंग आने लगती तो वी ट्राई टू प्रिडिक्ट के रिवर्सल आ गया, रिवर्सल आ गया। तो रिवर्सल इज अ वेरी बिग थिंग, मैं हमेशा बोलता हूँ बहुत बड़ा चीज है, रिवर्सल इतनी आसानी से नहीं होता है। और मार्केट का रिवर्सल के लिए दे हैज टू बी अ वेरी बिग रीजन, कोई बहुत बड़ा रीजन होना चाहिए जिससे अपने रिवर्सल होता है। एंड रिवर्सल इज जनरली ग्लोबल रीजन की वजह होता है, ग्लोबल फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं। तो जितने भी आप रिवर्सल, आप हिस्ट्री देखेंगे, आप चेक करेंगे, तो आपका क्या होगा, उसमें रिवर्सल आपको ग्लोबल रीजन के लिए मिलेगा ही। ओके, विनीत शुक्ला जी बोल रहे सीजनल स्टॉक्स, सीजनल स्टॉक, सीजनलिटी स्टॉक्स, यू हैव ऑलरेडी आंसर्ड योर क्वेश्चन कि सीजनल स्टॉक्स अपने सीजन में ही उनका ट्रेंड चेंज होगा। जो सीजनल स्टॉक्स है उनका सीजन जब आएगा तभी ट्रेंड चेंज होगा, राइट? So what I was trying to say, the question is related to that only, seasonal stocks. So when the seasons come, they will perform that way only. ठीक है, साइक्लिकल स्टॉक, सीजनल स्टॉक जिसको अपने बोलते हैं, राइट? क्लियर विनीत जी? तो आंसर जो है आपके क्वेश्चन में ही है, सीजनल स्टॉक्स विल परफॉर्म ड्यूरिंग इट्स सीजन।